Good afternoon, dear students. Today we will start second module, that is rectifier. So, what do you mean by rectifier? Rectifier is nothing, it's just a electronics device which convert AC power or alternating current into pulsating DC current. Okay? So what is rectifier? A rectifier is a circuit which is used to convert AC voltage or current into pulsating DC voltage or current. Okay. So what do you mean by pulsating? Pulsating means क्या होता है? So pulsating means wave. Pulsate means हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट DC is always a straight line. This is called DC, but here we get a pulsating DC means the output will be pulsate. Okay, pulsating in nature. Okay, so rectifier circuit used one or more diode. It means जो rectifier होता है वो मेरा एक और एक से ज़्यादा डायोड यूज़ करता है. ठीक है, अभी हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े? व्हाट इज़ पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड. ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग जो डायोड पढ़े उसका यूज़ देखेंगे एज अ रेक्टिफायर. ओके, हम लोग तरह तरह का डायोड यूज़ करेंगे और डिफरेंट नंबर्स ऑफ डायोड यूज़ करके हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे. जो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं उसको डीसी करंट पे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर का ज़रूरत क्या पड़ा? सो device like a smartphone need DC current to charge. Okay, so every electronic circuit such as amplifier need DC power for its operation, but the electricity we get in our home is AC. So हम लोग का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है और डिवाइस है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं एम्पलीफायर या फिर स्मार्टफोन, ये सब मेरे डीसी करंट से चलते हैं. ठीक है, तो डीसी करंट मेरा कहाँ से आएगा? सो रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस है जो वे मेरा एसी करंट को डीसी पे कन्वर्ट कर रहा है. एक्चुअली हम लोग का जो घर में करंट आ रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट है विथ 220 वोल्ट. तो हमको 220 वोल्ट नहीं चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए. तो इट मीन्स जो मोबाइल चार्जर होता है, जो स्मार्टफोन हम लोग चार्ज करते हैं, उस पर एक रेक्टिफायर लगा रहता है और उसके साथ कुछ कुछ कंपोनेंट्स लगे रहते हैं जो मेरा वोल्टेज को 220 वोल्ट से 5 वोल्ट तक कन्वर्ट करें. ठीक है, सो बेसिकली जो रेक्टिफायर होता है उस पर एक देखिए, जब वोल्टेज स्टेप डाउन हो गया तो स्टेप डाउन मेरा ट्रांसफार्मर ही कर सकता है. तो मीन्स रेक्टिफायर हमेशा एक ट्रांसफार्मर के साथ आता है. ठीक है, सो ये मेरा नीड हो गया. दिस इज़ द नीड ऑफ रेक्टिफायर. नेक्स्ट वन इज there are two types of rectifier. So basically our rectifier is converted into two types. Okay, so first one is half wave rectifier and second one is full wave rectifier. So full wave rectifier is further classified into center tapped full bridge rectifier, full wave rectifier, sorry, or second one is bridge rectifier. Okay, so this classification is based on the output voltage, half wave rectifier and full wave rectifier. ओके, मीन्स जो मेरा आउटपुट पे डीसी वोल्टेज आ रहा है उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाइड किए हैं दो टाइप में, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर. सो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के जाने से पहले वी शुड नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिफायर. सो द फर्स्ट वन इज रेक्टिफायर एफिशिएंसी. व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर एफिशिएंसी? It signify how efficiently rectifier circuit convert an AC power into DC power. It means जो मेरा rectifier circuit है वो कितना efficiently मेरा convert कर रहा है AC power को DC power पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? rectifier efficiency. It can be calculated as this is denoted as efficiency PDC upon a PAC. So P, what is PDC? DC power, DC of output power का DC and AC of input power. So by this we can calculate our rectifier efficiency. Now
come to the second one, that is peak value of current in rectifier circuit. What do you mean by peak value of current in the rectifier circuit? So the peak value is the maximum value of the alternating current in the rectifier circuit. Okay, peak means क्या होता है, सबसे हाईएस्ट. हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम, मीन्स रेक्टिफायर सर्किट पे जो मेरा मैक्सिमम करंट होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन रेक्टिफायर सर्किट. This decide the rating of rectifier circuit element, that is diode. It means अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा तो हम लोग रेटिंग डिसाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डायोड का. ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेक्टिफायर सर्किट इन रिवर्स डायरेक्शन. अब मेरा पिक वैल्यू कितना वोल्टेज हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में एक डायोड के और रेक्टिफायर सर्किट के अक्रॉस अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट पे क्या बोलते हैं, पिक इनवर्स वोल्टेज, दैट इज PIV. ओके, सो व्हेन डायोड इज नॉट कंडक्टिंग, देखिए जब डायोड मेरा कंडक्ट नहीं होता है तो रिवर्स बाइज वोल्टेज गेट अप्लाइड अक्रॉस द डायोड. ठीक है, जब हम लोग रिवर्स बाइज वोल्टेज अप्लाई करते हैं डायोड में तो वो कंडक्ट नहीं करता है. द पिक वैल्यू ऑफ सच वोल्टेज डिसाइड द पिक इनवर्स वोल्टेज. ठीक है, तो बेसिकली जो पिक वैल्यू ऑफ वो जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो मेरा डिसाइड करेगा पिक इनवर्स वोल्टेज, दैट इज़ PIV रेटिंग ऑफ डायोड. सो तो इसको सिंपली हम लोग शॉर्ट पे इसको पिक इनवर्स वोल्टेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट द डायोड कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जंक्शन. सो सिंपली पिक PIV जो होता है वो सिंपली वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है जो हम लोग रेक्टिफायर सर्किट या फिर डायोड में अप्लाई करते हैं, जो कि वो सस्टेन कर सकता है विदा डैमेज हुए. ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ वन, रिपल फैक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय रिपल फैक्टर? ओके, सो द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग DC टाइप. सो मेरा जो आउटपुट होता है वो हम लोग देखें कि पल्सेटिंग DC टाइप होता है, मीन्स पल्सेट कर रहा है. ओके, so the amount of AC content in the output can be mathematically expressed by the factor called ripple factor. अब कितना amount of AC component content मीन्स जो मेरा आउटपुट होता है रेक्टिफायर का वो मेरा पल्सेटिंग है. पल्सेटिंग मीन्स उस पर कुछ कंपोनेंट AC का है. ठीक है, जिसको हम लोग रिपल बोलते हैं. ठीक है, तो जो वो कितना AC कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फैक्टर कॉल्ड रिपल फैक्टर. सो द लेसर इन द रिपल बेटर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्किट. मीन्स अगर रिपल फैक्टर मेरा कम होगा तो रेक्टिफायर सर्किट का बेटर परफॉर्मेंस होगा. राइट, सो द फार्मूला ऑफ रिपल फैक्टर इज RMS value of AC component of output voltage upon DC component of output voltage. Okay, now come to the fifth one, ripple frequency. What do you mean by ripple frequency? So basically it is the frequency of residual AC voltage after it has been rectified to DC in a power supply. It writes on the top of the DC voltage. Okay, so basically ripple देखिए रिपल जो AC कंपोनेंट मेरा आउटपुट साइड में पल्सेटिंग DC पे प्रेजेंट है उसको हम लोग रिपल बोलते हैं, और रिपल फैक्टर उसको फाइंड AC कंपोनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला को रिपल फैक्टर बोलते हैं. ओके, सो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, मीन्स जो मेरा आउटपुट पल्सेटिंग आएगा इस पर कितना मेरा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी. मीन्स रिपल का फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी. तो ये जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी एस AC फ्रीक्वेंसी. मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी AC फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, सेम एज AC फ्रीक्वेंसी. और फुल वेव के लिए क्या होता है, RF इज ट्वाइस द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. इट मीन इट्स बिकम 100 हर्ट्ज. ओके, सो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज आवर 50 hertz, then it is the for full wave rectifier it is the twice. Okay, RF frequency में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होगा ट्वाइस हो जाता है, जिसके चलते वो मेरा क्या बोलते हैं, मीन्स 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा रिपल फ्रीक्वेंसी होता है. द सिक्स वन इज
sixth one and seventh one. What do you mean by ripple? So AC component present in the DC output voltage is called ripple. So the ripple is specifically रिपल वोल्टेज. हम लोग रिपल्स का बात कर रहे हैं तो हम लोग सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, रिपल वोल्टेज का बात कर रहे हैं. ओके, सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज द रेसिडुअल पीरियडिक वेरिएशन ऑफ द DC वोल्टेज विद इन अ पावर सप्लाई which has been derived from an AC source. It may be reduced by electronics filter. So जो रिपल्स आ रहे हैं, मेरा पल्सेटिंग इन नेचर में जो आउटपुट आ रहे हैं उसको हम लोग बेसिकली किससे रिड्यूस कर सकते हैं, तो एक डिवाइस आता है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर. ओके, नाउ द लास्ट वन इज 7 number, transformer utilization factor. Transformer utilization factor TUF. So transformer utilization factor means क्या हुआ, so how effectively transformer is used in rectifier circuit. So मेरा ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज़ किए हैं रेक्टिफायर सर्किट में, उसको वो कितना इफेक्टली मेरा यूज्ड हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर. सो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ DC पावर डिलीवर्ड टू द लोड and the AC rating in the secondary transformer is called transformer utilization factor. TUF, DC power delivered to the load, AC rating in the secondary transformer. So this is called the transformer utilization factor. So I hope you all understood about the characteristics of rectifier circuit. So from next video we will discuss about the classification of rectifier, that is half wave rectifier and the full wave rectifier. That is all for today. Thank you all of you.